فوراً شروع کرتے ہیں. صدر زرداری صاحب کراچی میں ہیں, ویڈیو لنک کے تھرو ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اینڈ ہیڈ لائک ٹو ہم صدر زرداری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وی پلیز اسٹارٹ دا پروسیڈنگس ود ہز ریمارکس. میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اور کو ہوسٹ اے پی سی اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی یہاں پر موجودگی ہم سب کے لیے یقیناً ایک بڑا انسپائرنگ مومنٹ ہے, اور آپ سے آج ہم آپ کی باتیں سنیں گے بڑے غور سے. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. صدر زرداری صاحب آپ پلیز. میں آئے؟ جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ساتھیوں. میں سب دوستوں کو, سب لیڈرز کو, اور خاص کر کے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین کی دعوت پہ آنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ مل کے بیٹھے ہیں. میں میاں صاحب کی صحت کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. انشاءاللہ ان کی صحت جلد بہتر ہو جائے گی اور وہ ہم سب میں ہوں گے, اور پھر اس وقت انشاءاللہ تب تک اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ اے پی آواز سی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے میاں صاحب. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے, مگر کیا کریں. مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کے اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں, سمجھے. تو دوستو اس اے پی سی کے کامیابی کا جو صحرا ہے وہ آپ سب کے نظر ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چغلیاں کر رہی ہے حکومت, جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت, یہی آپ کی کامیابی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے, جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں. میرا انٹرویو بین کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے, پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الزام میں, اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہے. ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں. تو دوستو یہ حالات آج کے ہیں, مگر ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں سے لوگوں کو پتا ہے, لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے, چاہے یہ کتنا بھی ہمیں زرگوب نہ کریں, کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں. جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو, اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے, لاہور سے. تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں. ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے, اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں, ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے. نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی, کے پی کا بھی کرتا ہے, سندھ کا بھی کرتا ہے, اور پنجاب کا, ساؤتھ کا, ہر جگہ کا کرتا ہے, گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور بھی مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں. ان کو بھی میں
वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दरिंदों ने उनके साथ कितनी तकलीफ के साथ उनने गुजारा होगा। मगर मैं उनको भी सलाम भी करता हूँ, मरियम बीबी को, और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। ये हमारी कोई पहली एपीसी नहीं है। 1996 में भी 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियाँ साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हमआहंगी मिलाई थी, बनाई थी, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा और साथ साथ हमने 18th अमेंडमेंट भी पास की। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिलके 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे। तो उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस एपीसी में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी 18th अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ में हमेशा, मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन, इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है। मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते
उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर, ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है। आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए। और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। और इंशाअल्लाह फैज की आवाज में हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सदर ज़रदारी साहब। अब हम लंदन से दावत देते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम साजिद मीर साहब, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन खान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जमालदीनी साहब और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो
अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई, तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में
पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाअल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात, हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने, कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है, किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा ये है कि यहां या तो मार्शल लॉ होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला
स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग
गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए?
शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई। पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सी पैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा देरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है।
आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जूं रीतती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौमे हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैनुल-अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे चढ़ जाता है और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले खवातीनों हज़रात एक मजमूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमूम साजिश के जरिए बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर एससीसीपी के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो-बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई। ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा।
अंदाजा लगाइए अब आप। एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुकूक शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल ये है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? ये बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता।
क्या कुछ लोग इस दोहरे मियार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर यह कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए
तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी नहीं समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, इन्हें हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़ अमीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं, बल्कि ऐसे मुंसफ तलाश किए जाते हैं जो इनके हर जायज और नाजायज मुतालबात तस्लीम करें, इनके जबरो इस्तिबदाद और ब्लैकमेलिंग के आगे सरे तस्लीम खम करें, नजरिया जरूरत बनाएं और परवान चढ़ाएं। आइन को सैबोटाज करने वाले डिक्टेटरों के इकदामात को कानून का जामा अता करें, उनके गले में हार पहनाएं, उनको वेलकम करें, खुशामदीद कहें उनको। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तो जरूरत थी आज, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने माशाअल्लाह लेट लगाया है, ये पहले लगाना चाहिए था। सबसे पहले प्लेट में फूल लेकर उनको पेश किए जाते रहे हैं, और फिर आर्टिकल 6 जैसे संगीन जुर्म के मुल्जम को आइन में तरमीम का इख्तियार अता किया जाता है। ये सब तमाशा आपने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद ये सब कुछ दोबारा कहने की नौबत आ रही है। यानी ये सब कुछ हो रहा है और अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दें, जेलों में डालें, जला वतन करें और उनको और उनके खानदान को ज़लील और रुसवा करें। इस कॉन्फ्रेंस को आइन की हुक्मरानी और वोट की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज एक जामे लाएअमल तजवीज़ करना चाहिए। अगर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद पर किसी नए मिसाक़ की तश्कील ज़रूरी हो तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत की बुनियादी मसले को हल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का नतीजा सकूत ढाका की शक्ल में सामने आया था, लेकिन उस अजीम साने को भी बड़ी सर्द महरी के साथ फरामोश कर दिया गया। मेरी तजवीज़ है कि ये कॉन्फ्रेंस हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को अवाम के सामने लाए। बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इक़दामात से मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निज़ाम से जिसका मैंने जिक्र किया है
इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायद आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक़ हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की अहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
ایکسکیوز می، اگر مناسب ہو تو پلیز سب کی رائے کہ موبائل فونز جمع کرا دیں پلیز. ویسے وہ کر رہے تھے، ڈونٹ وری، لنچ کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہی تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، ہم سب جو یہاں موجود ہے، ہم آپ کو اپنے دل سے شکریہ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ دونوں نے ملک کے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پورا ملک آپ کا آواز آج سنے ہیں، بہت ہی خوش ہے کہ اتنے دیر بعد ان کو صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنا واضح پیغام، اور ہمارے لیے لکھ کے دے دو، لکھ کے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، یہاں کی ساری جماعتیں کے لیے، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو ورڈنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہے، انسٹرکشنز ہے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. ہم نے بہت کوشش کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو بجٹ کے وقت کروائیں، اور ہمارا ذہن میں یہ تھا کہ اگر بجٹ سے پہلے سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں. ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، جو ٹائٹل ہے، 2 سال پی ٹی آئی کی سلیکشن کا، پی ٹی آئی کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے. اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس اے پی سی سے نہ معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو. اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں. اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو، تو معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا،
میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس کو مدد کرنے کے بجائے وہ حکومت کے نشانے پر تھے، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کا آواز دبایا گیا، اور جس طریقے سے آج تک یہاں کے پاکستان کے کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، تاجر، سب کے سب سراپا احتجاج ہے. ہمارا میڈیا انوائرمنٹ میاں صاحب نے ہمارے سامنے، پورے ملک کے سامنے رکھ لیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے. یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے، تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا؟ ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا، اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے، سینئر سے، جو ایم آر ڈی میں، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہے، جو اے آر ڈی میں، الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہے ہیں، جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے، ان سے ہمارا درخواست ہے، آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے، آپ سب نے حکومت دیکھا ہے، آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے، پاور سنبھالا ہے، حکومت سنبھالا ہے، آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے. اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر، چاہے وہ موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو، ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے گا جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. اس کو ہمارا منشور بنا کے پھر ہم سب کو نکلنا پڑے گا، نہ صرف لاہور میں یا اسلام آباد میں مگر اس ملک کے دیہاتوں میں، گوادر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، فاٹا میں،
गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा. अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहां से चैलेंज करना है जहां वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं. वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को. आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा. हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे. ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है. अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार है, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है. हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं. इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस अज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है. मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे और प्लीज़ हमें मौका दे. मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है. अगर खाने के बगैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा. मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब अमीर हैदर होती साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, मोहतरम जनाब मोहसिन दावड़ साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर जमाल दीनी साहब, मोहतरम जनाब शाह अवैस नूरानी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम यहाँ पर मौजूद पार्टीज़ के अकाबरीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम. आज इस APC की सदारत के तहत जो प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ, उस हवाले से जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी हमागीर तकारीर की हैं और इतनी वो कॉम्प्रिहेंसिव तकारीर हैं कि उसके बाद मुझ नाचीज़ को कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा. लेकिन यकीनन मैं इख्तिसार के साथ
अपनी मारूजात पेश करूंगा। जनाब कायद मियाँ नवाज शरीफ ने सियासी तारीख का भरपूर अहाता किया। इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ औकात में हादसे हुए जिसने जमहूरियत को डिरेल किया और कम से कम 3 मरतबा डिक्टेटरशिप ने न सिर्फ जमहूरियत के ऊपर कारी ज़रब लगाई बल्कि अदलिया का निज़ाम और ज़िंदगी के हर शोबे में वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। और आज भी अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की है तो ये बात गलत नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, याद करें वो दिन अगस्त 2018 का जब इलेक्शन के बाद एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट और हम सब असेंबली में आए और सिलेक्टेड वजीर आज़म ने कौम से वादा किया फ्लोर द हाउस पे कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है, आरटीएस किस तरह बंद हुआ, किस तरीके से देहातों के रिजल्ट्स पहले आ गए और शहरों के रिजल्ट्स कई दिन ना आए, किस तरीके से इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई, रिगिंग हुई। इसके लिए एक हाउस की कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक चाहे वो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं या कोई और, उस कमेटी ने 1 इंच भी आगे सफर नहीं किया। और इल्जाम दिया जाता है कि ऑपोजिशन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं तो हर तरह से इस इलेक्शन की हवाले से मैं तैयार हूं प्रोब के लिए। अब इससे बड़ा झूठ और यू टर्न क्या हो सकता है। और फिर मैं ये चाहूंगा मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि जो बातें हो चुकी मैं उनको रिपीट ना करूं। और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ पर बड़े मुअज़्ज़ज़ यहाँ पर लीडरान कराम बैठे हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू करनी है और ख़ास तौर पर छोटे सूबों से जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं उन्होंने बात करनी है। तो मैं चाहूँगा कि इख्तिसार के साथ अपनी मारूज़ात पेश करूँ। अब देखिए कि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी और सबसे ज़्यादा तबाही कराची में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, आज़ाद कश्मीर में हुई, चित्राल में हुई। और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई कि वो किसी जगह जाकर वो लोगों की अश्कशोई कर सके, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको बांध सके, उनकी इमदाद कर सके। और आपने देखा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आफतदा लोगों को उन रेलों के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया। और बिलाखिर एक दिन कराची जाकर एक पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलों तो मिट्टी लाई। ये है वो वज़ीर आज़म, वो लीडर जिसके बारे में 2-2.5 साल मैं बड़े माज़ से कहूँगा कि उसमें हमारे बाज़ टेलीविज़न चैनल्स भी शामिल हैं कि उन्होंने किस तरह 2-2.5 साल इस वज़ीर आज़म के बनने से पहले किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया। और आपको पूरी कौम जानती है कि 2013-14 के धरने में 6-7 महीने इसी डी चौक पे दिन रात 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स ने किस तरह उस शख्स को दिन रात
पूरी दुनिया में दिखाया, जो ये कहता था कि जो वजीर आजम बिजली के बिल में इजाफा करे, समझ लीजिए, मैं वो लफ्ज दोहराना नहीं चाहता, जो हुकूमत उसके ज़ेरे निगरानी डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है, अगर रुपया गिरता है तो समझ लीजिए उस हुकूमत का सरबराह फलां है। जो हुकूमत गैस के कीमत में इजाफा करती है, समझ लीजिए कि उसका वज़ीर आज़म फलां है। ये दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि मैं मर जाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। और कर्जे किस तरह लिए गए पाकिस्तान की डूबती मईशत को चलाने के लिए, उसको सारी दुनिया जानती है। मगर उन कर्जों के हसूल के बावजूद इन 2.5 सालों में या 2.25 सालों में क्या हुआ कि आज महंगाई अपने आसमान से बातें कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिश्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे, और ये कोविड से पहले की बात है। कोविड तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बशमूल पाकिस्तान के। हम उस पीरियड की बात नहीं कर रहे, मैं प्री कोविड पीरियड की बात कर रहा हूं कि उस वक्त कोविड के आने से पहले पाकिस्तान की मईशत को ऐसी शदीद ज़रब लगी कि कोविड के आने से पहले जो हमारी GDP थी 2017-18 में 5.6 पे, वो कोविड के आने से पहले 1.9 पे पहुंच गई थी। और झूठ बोला, जो कि इस वजीर आजम का शेवा है कि वो 3% थी, वो 3% नहीं थी, वो एक्चुअली 1.9% पे आ गई और अब -0.4 पे है। 40 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गंदम की कटाई के फौरन बाद 66 लाख टन हुकूमत का दावा है कि उन्होंने गंदम प्रोक्योर की। आज गंदम की कीमत 73 साल की तारीख में सबसे ज्यादा है। मार्केट में बताते हैं कि गंदम जो फी मन जो 1300 जो सरकारी कीमत थी, उसके मुकाबले में आज 2600 रुपए या 2800 रुपए फी मन हो चुकी है। और इसी तरीके से चीनी जो 50 रुपए थी, वो आज 100 रुपए तक पहुंच गई। सवाल ये पैदा होता है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि 2018 के आखिर में जब ये हुकूमत आ चुकी थी, जिसने पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें बहानी थी और पाकिस्तान के अंदर बाहर से 300 अरब डॉलर लाने थे, उन्होंने फैसला किया कि चीनी की एक्सपोर्ट की जाए। हालांकि एक्सपोर्टेबल चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं था। एक्सपोर्ट करना और डॉलर कमाना तो बड़ी उम्दा बात है, लेकिन जब चीनी थी नहीं तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत का जुर्म किसने किया? और फिर सब्सिडी भी दी गई, हालांकि सब्सिडी देने की चंदा जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात कि जब 2018 में डॉलर 110-15 रुपए पे था, तो 2019 में जब वो 150-60 तक पहुंचा, तो ये जो 40% रुपए की कीमत में कमी हुई, उसका सारे का सारा नफा उन चंद चीनी के एक्सपोर्टर्स को मिला, जो कि 40 अरब रुपए बनता है। और फिर आपने ये भी देखा कि अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के महदूद ज़र मुबादला का इस्तेमाल इतना क्रिमिनल हो रहा है कि चीनी पहले आपने एक्सपोर्ट की और कीमतें बढ़ा दी और 80 रुपए पे चली गई, और आज चीनी आप
लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से गंदम, अभी सीजन का आगाज हुआ है और गंदम इंपोर्ट हो रही है। ये 73 साल में इस तरह की दिल खराश मंजर इस कौम ने नहीं देखा था। और इसका असल जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, यतीम बेवा, बेटी बेवा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा, उससे पूछे कि जिंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर आपने देखा कि कर्जे इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्जे ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल, 5 साल के कर्जे एक तरफ, 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल में कर्जे एक तरफ। और क्या इन्होंने कौम और मुल्क के लिए कौन से पब्लिक वेलफेयर जो मंसूबे बनाए हैं? एक नहीं, जहां पर भी जाते हैं पूरे मुल्क में वो पहले मंसूबों के ऊपर दोबारा जाके तख्तियां लगा रहे हैं। और फिर जो एहतसाब का अमल यहां पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही कि अगर इन्होंने एहतसाब करना होता तो पहले, सबसे पहले अपनी काबीना में वो लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अरबों खरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वजीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नैब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वजीर आजम। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वजीर आजम, यही हुकूमत। ना नैब ने FIA। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। मीडिया के साथ जो इस वक्त नारवा सलूक है, शायद वो हालिया तारीख में उसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूं कि आज ये APC जिस मकसद के लिए आज इकट्ठा, और फिर हमें कहते हैं कि जनाब इन्होंने इतने कर्जे लिए, तो उसका एक एक पाई का हिसाब तो आप देख रहे हैं। आपने तो कर्जों की एक कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया था। रात के 12 बजे वजीर आजम ने ऐलान किया था कि मैंने जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कर्जे लिए उसके लिए मैंने कमीशन बनाया है। वो कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, मगर उसमें से निकला कुछ नहीं और उसका एक एक पाई का इट इज अकाउंटेड फॉर। ये है वो यू टर्न के मास्टर वजीर आजम की कारकर्दगी, जिसके लिए आज पूरी कौम की नजरें इस APC की तरफ हैं कि आज हम क्या फैसले करते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि जो स्कूलों में जो बच्चियों के वज़ाइफ थे, मैं खास तौर पर जनूबी पंजाब की बात करूंगा कि वहां पर बच्चियों को, कौम की बेटियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनको वजीफे दिए जाते थे, वो खत्म कर दिए गए। अस्पतालों में अद्वियात मुफ्ती वो खत्म कर दी गई। CT स्कैन और एक्सरे की चार्जेस मुफ्त थे, वो खत्म कर दिए गए। हेपेटाइटिस की अद्वियात फ्री थी, वो खत्म कर दी गई। और फिर ये कहती हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफा कहा था या किसी और बड़े जय्यद आलम ने कि रियासत मदीना का नाम लेते वक्त डरना चाहिए और एहतराम करना चाहिए, कि इसको हमें सियासत में नहीं लाना चाहिए इस अजीम पाक नाम को। मगर क्या कहिए कि दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वालों को इतनी भी खबर नहीं कि मदीना में निकलते थे वहां पर कि कोई घर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ। और रात को गंदम की बोरी अपने कांधों पर डालकर उनके घर पहुंचाना, वो है रियासत मदीना का शेवा, ना कि अद्वियात आपने
مہنگی کر دی, ادویات کی قیمتیں جو مفت تھی وہ آپ نے بند کر دی, آپ نے غریب ماری کی, یتیموں اور بیواؤں کا پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ 73 سال میں جو ہر سال بجٹ پہ ایک کلارک کا, ایک گریڈ اپنا 9 کے اپنا ملازم کا جو تنخواہ بڑھتی تھی, آپ نے وہ بھی اس سال ان کو ان 2 سالوں اس سال نہیں دی. اس سے بڑا کوئی بھیانک دور پاکستان کی تاریخ میں آ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیا اس عظیم ریاست کا جس کا آپ دن رات نام لیتے ہیں, کبھی وہاں پر کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ آپ پینشن بھی آپ نہیں دیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال, بھیانک صورتحال جو آج ہمارے اس ملک میں ہمیں اس سے سامنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکی ہے اور بری طرح ناکام ہو چکی ہے. میں دیکھتا کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا, اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے, اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی, انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس کا احتساب نہ کیا اور اب بھی ہم نے ان تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود بھی ہم نے خاموشی اختیار کی, تو یقین کریں وہ خاموشی جرم بن جائے گی اور ہم بھی اس جرم کا حصہ بن جائیں گے. آپ یہاں دیکھیں کہ چین جیسا ایک بڑا مربی اور پاکستان کا بہترین دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, کس طریقے سے اسی حکومت میں آنے سے پہلے پبلکلی چین کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی. KPK میں آج 7واں سال ہے ان کی حکومت کا, وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ نے اس دور کے کیا کیا چائنا کے خلاف باتیں کی کہ دل دکھتا ہے کہ وہ ملک جو پاکستان کا ایک مخلص ترین دوست ہے اور جنگوں میں, امن میں, سیلابوں میں, زلزلوں میں, انٹرنیشنل فورم میں, UN میں, سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کا ہر وقت اس نے ساتھ دیا, اس کو بھی ہم نے نہیں بخشا. اور آج وہی چین ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ابھی قائد نے بات فرمائی اپنی اسپیچ میں, سعودی عربیہ ہمارے بہترین دوستوں میں شامل ہے. کس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور کشمیر کے اوپر وزیر اعظم کی زبان کو تالا لگا ہے. کشمیر کی وادی میں خون بہہ رہا ہے اور وہاں پر کشمیریوں کا جس طرح وہاں پر دن رات ان کو شہید کیا جاتا ہے, ننھے کشمیری کے نانا کو شہید کیا, جوانوں کو, بزرگوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو اور بیٹیوں کو. پھر آپ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے یہ پوری قوم اس کے اوپر متفق ہے, جب تک کہ وہاں پر پیلسٹائن کا جو جائز مطالبہ ہے, ان کو ایک زندہ رہنے کا, ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کا, اور جس کے اوپر انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں, جب تک کہ وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ بڑا ظلم ہوگا نہ صرف فلسطین کے نہتے عوام, بزرگوں, ماں اور بہنوں کا, بلکہ اس سے آپ کشمیر کے مسئلے کو اور کمزور کر دیں گے. مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہوگی اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, آخر میں مجھے پھر چند باتیں گزارشات کرنی ہیں, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے. یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے
کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی. اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے, اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے, اس دور میں مہنگائی تاریخی ہے, اس دور میں غریب ماری تاریخی ہے, اس دور میں بے روزگاری تاریخی ہے, اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے, سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے, معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے. تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس ملک کو, اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں. بس میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا, اور یہ جو شعر ہے اس کے اوپر میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا, معافی چاہتا ہوں. جی صاحب, مہربانی, تھینک یو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, پھونک ڈالے, یہ اسمبلی مستعار ہے نا, یہ نظام مستعار ہے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ہم مزید خطابت کے جوہر سب کے پاس ہیں, لیکن شاید بھوک کی وجہ سے سمجھ نہ پا سکے کوئی بات جو. تو میں ایک گزارش کروں گا صرف جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور جناب آصف علی زرداری صاحب سے.